Hello students, good morning. So in this video lecture we will learn about first technique of capital budgeting. So through this technique we evaluate capital budgeting projects, and the name of this technique is average rate of return. So to cover this ARR we will get into detail about meaning of ARR and just a minute. Meaning of ARR. What is the calculation of average rate of return? Accept reject criterion. Evaluation of ARR method. So what are the merits and demerits of ARR method? So firstly, what is the meaning of ARR? So ARR method of evaluation of proposed capital budgeting projects is based on accounting information rather than cash flows. So ARR method is also known as accounting rate of return method. So firstly this is ARR. Another name of ARR is accounting rate of return method. So this method is based on accounting information, and you know that accounting information supplied by the financial accounting. Why specifically financial accounting? क्योंकि जब हम किसी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करते हैं, इनकम स्टेटमेंट तैयार करते हैं, सो वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द करंट ईयर आफ्टर टैक्स प्रॉफिट्स ऑफ दैट कंपनी, and on the basis of that after tax current year profit or loss, so if profit is there, that will be transferred to the P&L balance sheet, and if there is a loss, so that will also be recorded in the balance sheet as a negative item. So this is the return, this is the yield, return, and this return is calculated on the basis of the investment made in the project. So the final result will be in the percentage term. हम एक परसेंटेज टर्म्स में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करेंगे. सो पॉइंट इज दैट दिस मेथड इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग information rather than cash flows. So accrual basis of accounting is followed in preparing ARR calculation. So the method for ARR is average annual profits after taxes divided by average investment over the life of the project into 100. So we will get a specific results in the percentage terms. So this is the basic formula to determine accounting rate of return or average rate of return of a capital project. So firstly, what do you mean by average profits after tax? So the word average is used. So basically we will calculate simple arithmetic mean, and arithmetic mean the total number of observation divided by n. So this is the formula ki sigma x upon n. So here the sigma x is annual profits after tax, and this is the total of annual profits after tax during the economic life of the project divided by n. So we will find average annual profits after tax. So the determination of average profit after tax is summing up adding up after tax profits expected for each year of the project life and dividing the result by the number of years. And in case of annuity, so annuity is a
constant stream of cash flows for a certain period of time. So suppose economic life of the project is 5 year, and every year if annual profit after tax is 10,000, so till 5 years total profits will be 50,000, 50,000. Divide by this amount by 5. So this is 10,000 is the average annual profits which are equal to the any year's profit. ओके, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट भी 10,000 है, सेकेंड ईयर का भी 10,000 है, एंड लाइक फिफ्थ ईयर का प्रॉफिट भी 10,000 है इन दिस एग्जाम्पल. तो इन केस ऑफ एन्युटी एवरेज आफ्टर टैक्स प्रॉफिट्स आर इक्वल टू एनी ईयर्स प्रॉफिट. सेकेंड denominator is average investment. So this average investment is calculated by dividing the net investment by 2. So how to calculate net investment? So net investment divided by 2, result will be the average investment. So to determine average investment, so we will keep in mind two main points. One is working capital and second will be the scrap value. Okay, so working capital and scrap value, these are the two main factors which affect the value of average investment. So this is the meaning of average investment and how it is determined. But to determine average investment, a firm assumes that this straight line method of depreciation is used. And what is the scope of the straight line depreciation method? So under this method, the book value of the machine depreciates या declines at a constant rate from its purchasing price to 0. मीन्स जब मशीन का इकोनॉमिक लाइफ पूरा हो जाएगा तो मशीन की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी. ओके, क्योंकि अगर किसी मशीन का कॉस्ट 1 लाख रुपए है और उसका लाइफ 10 साल है, तो 10 से उसको आप डिवाइड करेंगे तो ईयरली डेप्रीशिएशन आपका 10,000 हो गया. तो 10th ईयर के एंड में मशीन का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा. सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ द स्ट्रेट लाइन डेप्रीशिएशन. तो हम ये मान के चलते हैं कि व्हेन डेप्रीशिएशन मेथड इज यूज्ड बाय ए फर्म फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एवरेज इन्वेस्टमेंट, so on an average basis a company will use 50% of its purchase price in the books. तो हम 50% ऑन एन एवरेज हम ये मान के चलते हैं कि वो पैसा एक इन्वेस्टमेंट के रूप में मशीन के अंदर ब्लॉक रहता है. ओके, यहाँ तक का जो मीनिंग था, दिस इज़ विदाउट सैल्वेज वैल्यू. मान लीजिए किसी मशीन का सैल्वेज वैल्यू गिवन है 1 रुपया से लेके 5,000, 10,000 व्हाट्सोएवर. तो उस केस में जब एवरेज इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट की जाएगी तो हम मशीन का डेप्रीशिएबल कॉस्ट कंसीडर करेंगे. डेप्रीशिएबल कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट ऑफ द मशीन माइनस सैल्वेज वैल्यू. तो डेप्रीशिएबल कॉस्ट आ जाएगी. सपोज मशीन का कॉस्ट है 1 लाख, डेप्रीशिएबल वैल्यू है 10,000. ओके, सॉरी, सैल्वेज वैल्यू है 10,000, तो डेप्रीशिएबल कॉस्ट हो गया इसका 90,000. तो इसका मतलब 90,000 रुपये हमने उस मशीन का डेप्रीशिएशन वैल्यू है जिसको उसकी इकोनॉमिक लाइफ के दौरान हमने यूज कर लिया है. ओके, तो सैल्वेज वैल्यू आप कंसीडर करेंगे टू डिटरमाइन द एवरेज इन्वेस्टमेंट, ओके, विद रिस्पेक्ट टू ए मशीन. एंड दूसरा पॉइंट ये है कि जो सैल्वेज मनी होती है वो मशीन के टर्मिनल ईयर में ही हमें वापस मिलती है. ओके, तो इसलिए सैल्वेज वैल्यू विल बी रिकवर्ड ओनली एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट. तो हम ये मान के चलते हैं कि एक मनी, ए सम ऑफ मनी इक्वल टू द सैल्वेज वैल्यू रिमेन्ड ब्लॉक्ड इन द प्रोजेक्ट थ्रू आउट इट्स लाइफ टाइम. तो 0 से लेके अगर 10 साल तक का आपका इकोनॉमिक लाइफ है तो सैल्वेज वैल्यू का एक अमाउंट जो है इस मशीन के अंदर जो है वो ब्लॉक्ड रहता है. ठीक है, तो पॉइंट इज डैट कि नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू द सम ऑफ सैल्वेज वैल्यू टू डिटरमाइन द एवरेज इन्वेस्टमेंट. ओके,
तो एवरेज इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन में सैल्वेज वैल्यू को आप एक एब्सोल्यूट बेसिस के ऊपर उसको कंसीडर करेंगे, राइट। तो कैसे इसका कैलकुलेशन होगा वो आगे एक फार्मूला दिया जाएगा। तो ये तो हो गया पॉइंट सैल्वेज वैल्यू का। सेकंड जो एलिमेंट है डैट इज़ द वर्किंग कैपिटल। तो सपोज एडिशनल वर्किंग कैपिटल इज नीडेड इन द इनिशियल ईयर विच इज़ लाइकली टू बी रिलीज्ड ओनली एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ। सपोज कुछ सर्टेन अमाउंट जो है, मान लीजिए 5,000, 10,000, ओके, ये आपको वर्किंग कैपिटल के रूप में जब प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है वो परमानेंट रूप से चाहिए। तो परमानेंट वर्किंग कैपिटल इज़ यूज्ड फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट टिल द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। तो शुरू से आखिर तक वो परमानेंट वर्किंग कैपिटल जो है वो प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टेड रहती है। तो इसलिए इसको हम एक परमानेंट इन्वेस्टमेंट मानते हैं, ओके। तो इसलिए फुल वैल्यू ऑफ वर्किंग कैपिटल शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ARR। अब फाइनल जो फार्मूला है ARR का वो रहेगा आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट, नेट वर्किंग कैपिटल प्लस सैल्वेज वैल्यू, ओके, दीज आर द टू मेन एलिमेंट्स, प्लस 50% या 1/2 ऑफ डेप्रीशिएबल कॉस्ट ऑफ द मशीन। डेप्रीशिएबल कॉस्ट इनिशियल कॉस्ट ऑफ द मशीन माइनस सैल्वेज वैल्यू, उसका 50%। सो दिस इज़ द टोटल ग्रॉस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, और उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो डैट विल बी द एवरेज इन्वेस्टमेंट, राइट। तो नेट इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाई 2 इज़ द एवरेज इन्वेस्टमेंट। देखिए ऊपर जो फार्मूला लिखा हुआ था, नेट इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाई 2 विल बी द एवरेज इन्वेस्टमेंट, राइट। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट मीन्स द अमाउंट, एवरेज अमाउंट ऑफ मनी remained blocked during the lifetime of the project under consideration, okay. So this is the average value of capital which remains blocked till the lifetime of the project under consideration, okay. So next is average investment is affected by the method of depreciation, salvage value and additional net working capital needed by the proposal, right. So this is the theoretical part of ARR. How to calculate ARR? So with the help of examples we will learn about how to determine ARR. So ARR can be computed in a number of ways. So there are two machines, machine A and machine B. So this is the initial cost of the machine, and this is the annual profits after tax and depreciation from 0 to 5 years. So these are the 5 years profit with respect to machine A and machine B. So in case of machine A, profits are in ascending order, and in machine B profits are the descending order. Means machine A में later years में आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है और मशीन बी में अर्लियर ईयर्स में आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, राइट। दोनों मशीन का इकोनॉमिक लाइफ जो है वो 5 साल है, और सैल्वेज वैल्यू भी दोनों मशीन का जो है वो सेम है, डैट इज़ दी 3000, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन वी कैन कैलकुलेट द ARR। तो एंड डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन द स्ट्रेट लाइन बेसिस। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट ARR को कैलकुलेट करने के लिए दिस इज़ द फार्मूला, एवरेज इनकम या एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो एवरेज इनकम ऑफ मशीन बोथ मशीन ए एंड बी आर 7375, 36,875 डिवाइड बाई 5। एवरेज इन्वेस्टमेंट दिस इज द सैल्वेज वैल्यू 3000, 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द मशीन माइनस सैल्वेज वैल्यू। So both the ARR with respect to both machines is 24.9% or 25%, right? So in this example, so the ARR with respect to both machines are same. There is another approach which is using original value of the investment rather than the average cost of the project. So if we are considering original value of the investment, so ARR for both the machines would be 13.1%, okay. So denominator will be 56,125, which is the original cost of the machine,
right? So there is another example. So there is a Tata Motors Limited which is going to invest in a project a sum of rupees 3 lakh having a lifespan of 3 years, right? Salvage value of the machine is 90,000. Profit before depreciation for each year is 1,50,000. So this is profit before depreciation. Depreciation is charged on a straight line basis. Okay, so this is the initial investment 3 lakh. 3 lakh minus salvage value 90,000. So this is the depreciable value 2,10,000 divided by 3. So result will be 70,000. So profit after depreciation would be 150 minus 70. So each year profits after depreciation are 80,000. So this is a case of annuity, right? तो वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन दी बिगिनिंग एंड एंड, ओके, तो बिगिनिंग में जब प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 70,000 रुपये इसमें डेप्रिसिएशन रिड्यूस कर दिया, तो ईयर एंड में 2,30,000. ओके, सो इन द फर्स्ट ईयर व्हेन प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड अमाउंट इन्वेस्टेड अमाउंट वाज रुपीज़ 3 लाख. In the second year beginning it is 2,30,000 and in the third year beginning it is 1,60,000, right? तो ARR, if ARR for the project is as per annual basis, right? ईयरली बेसिस के ऊपर अगर आप ARR कैलकुलेट कर रहे हैं तो ईयरली प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन और इन्वेस्टमेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. ओके, तो पहले साल का ARR क्या आएगा? 80,000 डिवाइड बाई 3 लाख. सेकेंड ईयर ARR एंड थर्ड ईयर ARR, राइट? तो एंड एवरेज ARR वुड बी 37.15%. सो दिस ARR इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल. सेकेंड है, इफ़ ARR ऑफ द प्रोजेक्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट. तो एवरेज एनुअल प्रॉफिट 2,40,000. ओके, ईच ईयर 80,000 है, डिवाइड बाई 3. सो दिस इज एवरेज एनुअल प्रॉफिट. ओके, 80 रहेगा एंड ARR वुड बी 3 लाख. ओके, क्योंकि दिस इज द टोटल इन्वेस्टमेंट. सो टोटल इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट इज ऑफ 3 लाख. एंड when ARR is calculated on the basis of average investment, so this is the final formula and in most of the cases the ARR is calculated by following this method. Okay, average investment के basis पर ही आपको calculate करना है. तो average investment same वही फार्मूला आप लगा लीजिए. So this is the original cost of the machine. Okay, this is the 3 lakh, right? एंड उसका जो है आपको 50% कैलकुलेट करना है. तो दिस इज तो 90,000 इज़ दी सैल्वेज वैल्यू. तो 3 लाख प्लस 90,000 डिवाइड बाई 2, 1,95,000. या आप ऐसे कर सकते हैं, 90,000 इज़ दी सैल्वेज वैल्यू, कॉस्ट ऑफ द मशीन इज़ 3 लाख, सैल्वेज वैल्यू 90,000 और उसका 50% आप ले लीजिए 1/2 और उसको 90,000 में जोड़ दीजिए. तो ये भी आपका 1,95,000 आ जाएगा. तो ARR इज़ दी 11.03%. सो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ कीप इन माइंड कि ARR इज़ कैलकुलेटेड फर्स्टली ऑन एनुअल बेसिस. सो दिस इज़ दी फर्स्ट फार्मूला ऑन एनुअल बेसिस. सेकेंड, ARR इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट. एंड इन द थर्ड वे, तीसरे तरीके में ARR इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज इन्वेस्टमेंट. ओके, तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली बेस ऑफ कैलकुलेटिंग ARR इज़ द एवरेज इन्वेस्टमेंट. ओके, तो ये फार्मूला आपको यूज करना है. ओके, तो सपोज फर्दर अगर हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ हमें एडिशनल वर्किंग कैपिटल भी ज़रूरत होती है, तो उसके लिए फिर फार्मूला आपका सैल्वेज वैल्यू में ये भी सैल्वेज वैल्यू के साथ साथ नेट वर्किंग कैपिटल भी आपको ऐड करना है. ओके, तो अब वो एग्जांपल में मान लीजिए 45,000 रुपया वर्किंग कैपिटल के रूप में प्रोजेक्ट में ब्लॉक्ड रहेगा फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड. तो एवरेज इन्वेस्टमेंट जो है आपका फिर 2,40,000 रुपये होगा और ये 45,000 रुपया एज ए नेट वर्किंग कैपिटल यहाँ पर जुड़ जाएगा. ओके, तो उस केसेज में ARR होगा 33.33%, राइट? सो देयर इज़ अनदर एग्जांपल. This a project requiring an investment of rupees 10 lakh and it produces profits after tax and depreciation
Okay, so the profit after tax and depreciation for the 5 years are given. Suppose at the end of the 5th year plant and machinery of the project can be sold 80,000. So this is the salvage value, okay, या realizable value of the project. Calculate the ARR. तो ARR कैलकुलेट करने के लिए, so on the basis of initial investment the project shall be 4,60,000 divided by 5. तो 4,60,000 divided by 5, so annual profit after tax would be 92,000 and original cost at the 10 lakh, तो ये आ गया 9.2%. On the basis of average investment 90,000 divided by 5,40,000. 5,40,000 कैसे निकला? सैलवेज वैल्यू 80,000, ओरिजिनल कॉस्ट थी 10 लाख, 10 लाख माइनस 80,000, दिस इज़ द 9,20,000 डिवाइड बाई इसका 50%, दिस इज़ 5,40,000 टोटल इंक्लूडिंग 80,000, राइट. सो ये आपका ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द एक्सेप्ट रिजेक्ट क्राइटेरियन. ओके, तो जनरली देखिए किसी भी प्रोजेक्ट में यदि ARR स्टैंडर्डाइज्ड ARR से ज़्यादा होती है, ओके, तो हम उस प्रोजेक्ट को इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर करेंगे. ओके, और जिस प्रोजेक्ट का ARR या रेट ऑफ रिटर्न जो है वो स्टैंडर्ड ARR से कम है तो उस प्रोजेक्ट को हम रिजेक्ट कर देते हैं. ठीक है, तो एक्सेप्ट रिजेक्ट क्राइटेरियन में जिसको आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट बोलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स. तो इन केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट ओनली बेस्ट वन इज सेलेक्टेड. बेस्ट वन के ऊपर ही हमें फोकस करना है. तो ARR विल एक्सेप्ट दोज प्रोजेक्ट्स हुज ARR इज हायर देन द मिनिमम रेट डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी या स्टैंडर्ड रेट डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी, एंड रिजेक्ट दोज प्रोजेक्ट्स विच हैव ARR लेस देन द मिनिमम रेट, राइट. अगर आप एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन के बजाय अगर आप रैंकिंग के केस में आप प्रोजेक्ट को कंसीडर करते हैं, ओके, इन केस ऑफ रैंकिंग ऑफ प्रोजेक्ट, तो ए प्रोजेक्ट विच इज़ हैविंग हाईएस्ट ARR वुड बी रैंक 1. उस प्रोजेक्ट को रैंक 1 दिया जाएगा जिसका हाईएस्ट ARR होगा, और जिस प्रोजेक्ट का ARR सबसे लोअर है उसको लोवेस्ट रैंक दिया जाएगा. ओके, तो दिस इज़ द इन केस ऑफ रैंकिंग ऑफ द प्रोजेक्ट. ओके, तो एक्सेप्ट रिजेक्ट क्राइटेरियन एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट ये सेकंड केस होता है. तो एक्सेप्ट रिजेक्ट क्राइटेरियन का मतलब है कि यहाँ वर्ड ऑल मिलता है, तो इसका मतलब क्या है कि ऑल दोज प्रोजेक्ट्स जिसका ARR एक स्टैंडर्डाइज्ड ARR से ज़्यादा है वो सभी हम कंसीडर कर लेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए. कंडीशन क्या है कि हमारे पास कैपिटल की कंस्ट्रेंट नहीं होनी चाहिए, कैपिटल राशनिंग नहीं होना चाहिए, है ना, मतलब लिमिटेड फंड नहीं होने चाहिए फर्म के पास. अगर फर्म के पास अनलिमिटेड फंड है फिर जो है आप सभी बेस्ट प्रोजेक्ट को जिनका ARR स्टैंडर्डाइज्ड ARR से ज़्यादा है उनको आप इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर कर सकते हैं. ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट में सिर्फ एक बेस्ट वन ही प्रोजेक्ट कंसीडर किया जाएगा. ओके, तो प्लीज़ अगेन कीप इन माइंड कि एक्सेप्ट रिजेक्ट क्राइटेरियन जो होते हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट नहीं होते. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट में तो एक प्रोजेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट का कॉम्पिटिटर रहता है, तो इसलिए ओनली द बेस्ट वन इज सेलेक्टेड. एंड एक्सेप्ट रिजेक्ट क्राइटेरियन में रहते हैं ऑल द बेस्ट वन, ऑल द बेस्ट वंस आर सिलेक्टेड, राइट. अब इसका मेरिट्स एंड डिमेरिट्स है. तो सबसे पहला मेरिट है सिंपलिसिटी. ओके, इट इज़ सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू कैलकुलेट. ओके, सेकंड इज़ द अकाउंटिंग डेटा. ओके, मैंने बिगिनिंग में ही बताया था कि दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. तो ARR इज़ कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द अकाउंटिंग डेटा, राइट. तो अकाउंटिंग डेटा का मतलब है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस आप प्रिपेयर करते हैं और यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालते हैं, दिस इज़ द बेसिक इन्फॉर्मेशन टू कैलकुलेट ARR. ओके, तीसरा है अकाउंटिंग प्रॉफिटेबिलिटी. बिकॉज दिस मेथड इज शोइंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए प्रोजेक्ट. ओके, तो इट हैज़ नो कंसर्न विद द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ ए फर्म. हमें फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए. तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ ए बिजनेस इज जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रॉफिटेबिलिटी.
ओके। तो एंड प्रॉफिटेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए ARR मेथड विल कंसिडर द एंटायर स्ट्रीम ऑफ एनुअल प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स। ओके, एंड उसके बेसिस पर हम एक प्रोजेक्ट की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करते हैं। ओके, तो इसलिए इट इज़ शोइंग अकाउंटिंग प्रॉफिटेबिलिटी या फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए प्रोजेक्ट, एंड इट इज़ आल्सो ए इंडिकेटर या मेजर ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबिलिटी, बिकॉज ARR का मतलब है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। सो व्हेन व्हाट इज़ द रेट ऑफ रिटर्न, तो रेट ऑफ रिटर्न इज कैलकुलेटेड ऑन परसेंटेज बेसिस। सो टोटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपका रिटर्न कितना है। ओके, तो इसलिए इसको हम एक रेट ऑफ रिटर्न के रूप में कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो इसलिए इन द कैलकुलेशन ऑफ ARR इट कंसिडर्स ऑल एनुअल प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स from beginning to end of the project life, so it provides a complete measure of the investment profitability, right। तो प्लीज़ कीप इन माइंड जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा मेथड प्रॉफिटेबिलिटी के बेस को कंसिडर करता है, प्रॉफिटेबिलिटी को डिस्क्लोज करता है, तो वो आपका ARR मेथड होता है। नेक्स्ट इज़ द लिमिटेशंस ऑफ द ARR मेथड। So as you know that this method is based on accounting profits, so cash flows are totally ignored. So profit shown by the P&L account and profit shown by the cash flow statement, okay, या the profit and loss which is based on cash flow approach, दोनों में अंतर होता है। तो cash flow and profit, accounting profit, there is a lot of difference। तो हम ये मानते हैं सबसे पहला जो लिमिटेशन है कि ARR मेथड इज़ बेस्ड ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन कैश फ्लोज। ओके, सो एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट आर बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव ओपिनियन ऑफ द अकाउंटेंट्स, सम customary assumptions and choices, okay, and also includes non cash items like the depreciation, okay। तो इसलिए ये इसको हम इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये कैश फ्लो को इग्नोर करता है और इसलिए ये FM के हिसाब से बेस्ट मेथड नहीं है। इट इग्नोर्स लाइफ ऑफ द प्रपोजल। ओके, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द प्रपोजल क्या है कि एक प्रोजेक्ट का लाइफ 5 साल हो सकता है, दूसरे का आपका 7 साल हो सकता है। यदि दोनों प्रोजेक्ट का ARR सिमिलर है तो ARR के बेसिस पर दोनों प्रोजेक्ट जो है वो इक्वली रैंक्ड हैं, ओके, इक्वली वैल्यूएबल है। बट अगर हम सेंसिबल और वाइज मैनर में बात करें तो प्रोजेक्ट A जिसका इकोनॉमिक लाइफ 5 साल है और प्रोजेक्ट B जिसका इकोनॉमिक लाइफ 7 साल है, तो B की तुलना में A जो प्रोजेक्ट है वो बेटर होता है। बट ये इसका एक लिमिटेशन है और आपको ये याद करके रखना है कि ARR इग्नोर्स द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट या प्रपोजल। तो ए प्रपोजल विद लॉन्गर लाइफ मे हैव द सेम ARR एज अनदर प्रपोजल विद ए शॉर्टर लाइफ हैज़, जैसे A and B, राइट। So on the basis of ARR, both the proposals may be equally ranked, may be placed at par, but the proposals with a longer life should be preferred over the proposal with a shorter life. Okay? क्यों प्रेफर करना चाहिए? क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा हमें 2 साल के लिए और बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो बट इस बेनिफिट के साथ साथ हमें इसका 2 साल का रिस्क भी कंसिडर करना पड़ेगा, राइट। बट ऑन द बेसिस ऑफ द इग्नोरेंस ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द प्रपोजल, एक जर्नल रूल ये क्या कहता है कि जिस प्रोजेक्ट का इकोनॉमिक लाइफ ज़्यादा होगा उसी प्रोजेक्ट को आपको कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि आपको कुछ एडिशनल ईयर्स के लिए भी प्रॉफिट मिलेगा, राइट। तो ये इसका सेकंड जो है वो डिमेरिट था। इट इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसमें जो हम एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करते हैं उसका डिस्काउंटेड वैल्यू हम या प्रेजेंट वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं करते, ओके। तो दैट्स वाई इट इज़ इग्नोरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट। नेक्स्ट है आर्बिट्रेरी कट ऑफ। जो स्टैंडर्डाइज्ड ARR है वो कितना होना चाहिए? स्टैंडर्डाइज्ड ARR का जो डिसीजन है दैट इज़ मेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी, एंड मैनेजमेंट जब डिसीजन लेता है तो उसके अंदर जो है आपका सब्जेक्टिव ओपिनियन इन्वॉल्व रहता है, राइट। तो इसलिए जो भी ARR स्टैंडर्डाइज्ड ARR या कट ऑफ ARR जो डिसाइड की जाएगी वो काफ़ी सब्जेक्टिव होती है, आर्बिट्रेरी होती है, ये कोई एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं रहता, राइट। तो फर्म यूजिंग द ARR रूल्स यूजेज
एंड आर्बिट्रेरी कट ऑफ यार्ड स्टिक। ठीक है, और जनरली ये यार्ड स्टिक क्या रहती है कि फर्म की करंट ईयर का जो रिटर्न है वो एसेट्स के ऊपर कितना है। तो बिकॉज ऑफ दिस ग्रोथ कंपनीज अर्निंग वेरी हाई रेट्स ऑन देयर एग्जिस्टिंग एसेट्स में रिजेक्ट प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स, ओके, विद पॉजिटिव एनपीवी। क्योंकि इसमें हम सिर्फ चालू वर्ष के दौरान इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें कितना रिटर्न मिल रहा है उसी को हम कंसीडर करते हैं। तो ये एक केस हो सकता है कि जो प्रॉफिटेबल कंपनीज होती हैं, ग्रोथ कंपनीज होती हैं, वो नेचुरली अगले साल, करंट ईयर से अगले साल भी बेटर रिटर्न देंगी, उससे अगले साल भी बेटर रिटर्न्स देंगी। तो हम इस आर्बिट्रेरी कट ऑफ के बेसिस पर हो सकता है कि हम उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दें, ओके, सिर्फ आर्बिट्रेरी कट ऑफ को देखते हुए, है ना। तो इसलिए सब्जेक्टिव इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर रहती है, राइट। और एक लेस प्रॉफिटेबल कंपनी को हम, एक लेस प्रॉफिटेबल जो कंपनी है वो एक बैड प्रोजेक्ट को कंसीडर कर सकती है विद निगेटिव एनपीवी, राइट। तो दिस इज़ द आर्बिट्रेरी कट ऑफ। एंड नेक्स्ट इज़ द इंटरनली इनकंसिस्टेंट। इसका मतलब है कि दिस एनपीवी मेथड इज़ इंटरनली इनकंसिस्टेंट विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ओके। क्योंकि इसमें जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर क्या मतलब क्या है, एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ओके। ये जो एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है डैट इज़ ट्रांसफ़र टू द बैलेंस शीट, और इसके ऊपर जो एक तरीके से ये रेजिडुअल इनकम होती है, अवशेष आय, और जिसका रिलेशन जो है वो शेयर होल्डर के साथ होता है, ओके, बिकॉज दिस रिमेनिंग प्रॉफिट बिलोंग टू द इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ओके। लेकिन जो डिनोमिनेटर होता है उसमें एवरेज इन्वेस्टमेंट होती है। तो इन्वेस्टमेंट इन ए प्रोजेक्ट मे बी मेड बाय द ओनर्स एंड सम पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट मे बी बोरोड बाय द ओनर फ्रॉम द मार्केट। तो डिबेंचर होल्डर भी उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, ओके। लैंडर्स भी कुछ पैसा जो है वो उस प्रोजेक्ट के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं, बट रेजिडुअल इनकम जो है टोटली डैट बिलोंग्स टू द शेयर होल्डर्स ओनली। तो इसलिए दिस इज इंटरनली इनकंसिस्टेंट, ओके। एंड नो गाइडेंस अबाउट टारगेट रेट ऑफ रिटर्न, ओके। तो टारगेट रेट ऑफ रिटर्न क्या होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होना चाहिए, उसके बारे में ये कोई भी एडवाइस और गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करता। साइज ऑफ द इन्वेस्टमेंट, इफ साइज ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज सिमिलर, ओके, मान लीजिए देयर इज ए प्रोजेक्ट एंड बी प्रोजेक्ट, दोनों में 1,00,000 रुपया और बी में 1.5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, लेकिन दोनों का ARR जो है वो मान लीजिए 15% सेम है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द इन्वेस्टमेंट द प्रोजेक्ट ए इज़ बेस्ट, क्योंकि इसमें 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट करने से ही हमें 15% रिटर्न मिल रहा है, और वही सेम 15% रिटर्न प्रोजेक्ट बी में 1.5 लाख रुपया इन्वेस्ट करने से आ रहा है, ओके। बट ARR डज नॉट कंसिडर द साइज ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट्स। तो जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें ओनली बेस्ट वन इज सिलेक्टेड, तो उस केस में क्या हो सकता है कि दोनों प्रोजेक्ट का इनिशियल कॉस्ट जो है वो द टू प्रोजेक्ट्स हैविंग सिग्निफिकेंट डिफरेंटली इनिशियल कॉस्ट, मतलब उनका इनिशियल कॉस्ट अलग अलग हो सकता है बट उनका सेम ARR हो सकता है, ओके। तो ऑन द बेसिस ऑफ द सेम ARR बोथ प्रोजेक्ट आर इक्वली वैल्यूएबल, ओके। बट प्रैक्टिकली विच वन इज बेस्ट, द प्रोजेक्ट विच इज हैविंग लेस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ओके, इन कंपेरिजन टू द अनदर, एंड इट इग्नोर्स सैल्वेज वैल्यू। तो ARR टेक्निक आल्सो इग्नोर सैल्वेज वैल्यू ऑफ द प्रपोजल, ओके। क्योंकि सैल्वेज वैल्यू का जो कंसिडरेशन है वो एवरेज इन्वेस्टमेंट में तो करते हैं हम, ओके, लेकिन सैल्वेज वैल्यू कब मिलती है, एंडिंग ईयर ऑफ द प्रोजेक्ट, जब प्रोजेक्ट का लास्ट वर्ष होता है, तो उस केस में हमें सैल्वेज वैल्यू जो है उस एंडिंग ईयर के प्रॉफिट में ऐड करना चाहिए, बट ये कंसीडर नहीं करता। तो इसलिए ये बोलता है कि ARR टेक्निक इग्नोर्स सैल्वेज वैल्यू ऑफ द प्रपोजल। एंड सैल्वेज वैल्यू एक तरीके से टर्मिनल ईयर का आय होता है, रिटर्न होता है, और कायदे से उसको टर्मिनल ईयर के एनुअल प्रॉफिट में जोड़ना चाहिए, बट ये उसको वहाँ पर कंसीडर नहीं करता। तो इसलिए इट इग्नोर्स द सैल्वेज वैल्यू, ठीक है। तो तो ये सभी जो है मेरिट्स एंड डिमेरिट्स विद रिस्पेक्ट टू द ARR मेथड। तो सबसे बेस्ट इसका जो मेरिट है वो दो हैं, एक तो इट इज़ बेस्ड ऑन अकाउंटिंग डेटा एंड दूसरा है इट डिटरमाइंस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए कंपनी। इसका ग्रेटेस्ट डिमेरिट क्या है
it ignores cash flow from the project, and it ignores time value of money concept. Okay, or the ARR is calculated without consideration of the economic life of the project and size of the investment in the projects, right? So thank you very much.